woman who is referred to gynae clinic with the symptoms of pelvic pain and dysmenorrhea. Obtain a detailed history, explain diagnosis to the patient, discuss the management plan with the patient, examination, investigations, finding will be given when asked. Okay, sir. ओके, Sir, इसमें start डिटेल from हिस्ट्री आपने लेनी बेटा, फोकस। हाँ, जी इसमें डिटेल हिस्ट्री नहीं आप लोगे, फोकस हिस्ट्री है इसमें। ठीक है सर, फोकस्ड कर लेती हूँ। हाँ, Assalamualaikum. My name is Dr. Yasmin. I have read the instructions and I'm ready for the structured discussion. First of all, I will introduce myself to patient, confirm the data that are given, and then inquire for her presenting complaint. As my patient presented with pelvic pain and dysmenorrhea, I will ask for duration, site, severity, nature, its association with radiation, any aggravating any association with the fever and vaginal discharge and association with and then I will take the detailed menstrual history including age of menarche, last menstrual period, days of bleeding per cycle, its regularity, any intermenstrual and postcoital bleeding, any pain during menses or pain during intercourse, and history of any urinary complaint like dysuria frequency and any other urinary complaint or hematuria, and history of constipation and gases or any other thing, bowel complaint, or pain during defecation or especially in the days of the in the days of menstruation. Further, I will elaborate the previous ops patient has and married since and parity and detail obstetric history for the parity, mode of deliveries, last child born, and either she's breastfeeding. And then after that, I will inquire for any past contraception like history of intrauterine copper device placement or any other contraception used, and history of smear and sir, past medical history and other past surgical history or history of DNCs and सर इसमें सेक्सुअल हिस्ट्री भी पूछा जाता है जैसे कि एनी इवेंट ऑफ जेनाइटल म्यूटिलेशन या जो कि क्रॉनिक पेल्विक पेन करवा रहे हैं उसको, या सेक्सुअल अब्यूज और एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर, एंड सर अदर इंक्लूड एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मेडिकल में से वो पूछेंगे, एंड एनी ड्रग हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, स्मोकिंग भी। ओके बेटा, आपने ये सिनारियो पढ़ा है, जरा दोबारा जी पढ़ो। सर। Sir, Mrs. Zohaib is a 35-year-old woman referred to gynae clinic with the symptom of pelvic pain and dysmenorrhea. ओके, कुछ और सिनारियो Sir, खत्म हो जाएगा बेटा यहाँ। sir, history हो गई. Your task is to obtain the detailed history, explain the diagnosis. Sir, मतलब रोल प्लेयर में. बेटा मुझे ये नहीं पता, मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपने इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली पढ़ी हैं। Sir, explain the diagnosis to the patient means role player. It's a role player. तो और आप क्या कर रहे थे? सर मैं स्ट्रक्चर डिस्कशन में चली गई, सॉरी सर। नहीं, इसमें मुझे तो सॉरी करने का कोई फायदा नहीं। जी हमारे जी तो जो सर, 5 मिनट थे वो माय मिस्टेक। तो इसलिए मुझे तो समझ नहीं आती ये आप लोग पहले जो 1 मिनट है उसको क्यों नहीं इम्पोर्टेंस देते। मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड आई हैव नो आइडिया कि व्हाई यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो तो एग्जामिनर चुप करके बैठा रहेगा, उस
उसको अपना जो एंडोमेट्रोसिस का काइंड ऑफ चैप्टर है वो आपने स्टार्ट कर दिया बोलना। जी सर। ये जो टोक्स का मतलब क्या होता है वैसे, ये ऑस्पी का मतलब क्या होता है, कभी वो आपने देखा जाके? व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? सर ये तो हर तरह से, मतलब जो हम कैंडिडेट्स होते हैं उनको मींस डिग ना आउट ना करना कि ये कैसे। ना जी ना, जी। मेरी बात नहीं समझे। व्हाट डज टोक स्टैंड्स फॉर? इससे बनता क्या है? व्हाट डज TOACS स्टैंड्स फॉर? सर ये मुझे अभी और, नहीं आ रहा। हाँ, जी। आपके पास फोन है, गूगल करके देखो जरा, या किसी और के पास है तो जरा चेक करके देखें। कितना टाइम लगता सर मैं चेक कर रही हूँ। है? ओके, आपको तो मेरा इस तरह नेट स्लो है। टास्क ओरिएंटेड असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स। यस, अगर इट इज टास्क ओरिएंटेड असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स, और इसमें हम वहां बैठ के आपसे आपका चैप्टर नहीं सुनना चाहते कि आप वो क्या पढ़ के आए। डू यू अंडरस्टैंड मी? जी जी सर। सर वही मैं कह रही थी, पेशेंट ओरिएंटेड वो मतलब हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स नॉट ओनली पेशेंट ओरिएंटेड, इट्स ओनली टास्क ओरिएंटेड। उस हर सिनारियो के अंदर आपको एक टास्क दी जाती है, जी आपने सर। जिसके ऊपर फोकस करके उसको लेके आगे चलना। जी जी सर। तो एक देर वहां पे यू आर लकी इनफ के जो रोल प्लेयर होगा उसके साथ आपके दो बंदे बैठे होंगे, एक एग्जामिनर बैठा होगा, एक रोल प्लेयर बैठा होगा। जी जी सर। कम से कम उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी कि ये जो है ये रोल प्लेयर है। जी सर। लेकिन कुछ स्टेशंस के अंदर सिर्फ एक ऑब्जर्वर भी बैठा होता है, जी बिल्कुल सर। तो उसको भी आपने कंफ्यूज नहीं करना जी। कि आप उसके साथ स्टार्ट हो जाओगे जी वो है। और ये हमारा रोल प्लेयर है कि इंटरएक्टिव है कि सिर्फ स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करना है। वो आपको जो आपको इंफॉर्मेशन पहले दी हुई है, जो आपको सिनारियो दिया है या आपको जो टास्क दी हुई है, उससे से देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी के उसको हम क्या करेंगे। जी सर। तो हम दोबारा इसको पढ़ लें जरा, ताकि वी डोंट वेस्ट मोर टाइम। हम्म। चलो विल मिसेस स्टार्ट ज़ैनब करें। सोहेल। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन है। मैं आपसे आपके मसले के बारे में बातचीत करने आई हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे साथ ताउन करेंगी। आपका नाम ज़ुहैब सुहेल है, और अभी जो है आपके मेरे पास आई हैं क्योंकि आपको नलों में दर्द होता है और माहवारी में भी दर्द होता है। क्या ऐसा ही है? अच्छा सॉरी, मैं फिर आपको रोक रहा हूँ। बेटा, जी, जी सर। जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने, जी, जी उसमें सर। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? Sir, Mrs. Suhail, 35-year-old, referred हम्म। to gynae clinic with the symptoms of pelvic pain and dysmenorrhea. ओके, अब आप जब जाओगे पेशेंट के पास, जी। तो एक उसमें जो पेशेंट सेफ्टी वाला कंपोनेंट है उसमें आपसे सिर्फ करोगे जी मुझे बताया गया है कि क्या आपका नाम मिसेस सुहेल है और आपकी अच्छा। उम्र 35 साल है। सही। यू नीड कंफर्म कर। टू reconfirm whatever the information you have gathered from the ये रोल प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है सर। उसको आप रिकन्फर्म, दैट मीन्स कि आप किसी और की फाइल पे किसी और के नोट्स नहीं पढ़ रहे या किसी और के नोट्स की किसी और को एडवाइस नहीं दे रहे। ठीक सर। डू यू अंडरस्टैंड? तो जी सर। पहली चीज इसमें होती है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए उसको आपने रिकन्फर्म करनी है। उसको वो वेट कर दे कि हाँ जी, वरना वो क्या, नहीं जी मेरी उम्र 35 नहीं, मेरी उम्र 45 है या मेरी उम्र 25 साल है। यहाँ पे गलत लिखी हुई है। हाँ, तो फिर उसको आप करेक्ट करके फिर देन उसके अकॉर्डिंगली देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू द पेशेंट। ठीक सर। ओके। ठीक। ओके। चलो जी अस्सलाम फिर वालेकुम, से। मेरा नाम डॉक्टर, जी जी,
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन है। मुझे बताया गया है यहाँ कि आपका नाम ज़ैनब सुहेल है और आपकी उम्र 35 साल है। और क्या ऐसा ही है? जी। जी, और आपको जो है यहाँ पे गायनी क्लिनिक में भेजा गया है क्योंकि आपको नलों में दर्द होता है और माहवारी के दिनों में भी आपको दर्द होता है। ठीक है? मैं आपसे आपके इस मसले के बारे में बातचीत करने आई हूँ। मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी इसके मुतालिक और आपका मुआयना भी करूँगी और आपको आगे के इलाज के बारे में भी बताऊँगी। ठीक है? देखिए, आप परेशान ना हों। आप मुझे इन सवालातों के जवाब दें ताकि मैं आपकी बेहतर से बेहतर इलाज के लिए मदद कर सकूँ। ठीक है ज़ैनब? ओके जी। ओके। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि आपको ये जो दर्द होता है नलों में और माहवारी के दिनों में जो दर्द होता है, ये कब से हो रहा है? ये किस किस्म का है? इसके बारे में थोड़ा मुझे आप तफ़सील से बताएँ। कि जब भी पीरियड्स आते हैं जी मुझे बहुत दर्द होती है, पहले 4 दिन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। माहवारी के साथ ही शुरू होता है? जी, माहवारी के साथ ही शुरू होता है और फिर 4 दिन के बाद आस्ते-आस्ते ठीक हो जाती है। अच्छा, अच्छा, ठीक है और वक़्तन-ब-वक़्तन बढ़ता तो नहीं जाता माहवारी के दिनों में? नहीं, फर्स्ट 4 डेज़ में स्वेयर होता है, उसके बाद फिर आस्ते-आस्ते ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। ये जो आपको माहवारी में दर्द होता है, ये शुरू से ही है? जब से आप जो है आपको माहवारी शुरू हुई थी, उन दिनों से ही है या ये नहीं, अभी स्टार्ट हुई है? कितने अर्से से? ये लास्ट कोई तकरीबन 3 साल हुए। 3 साल हो गए, ठीक है। आपको माहवारी के 2 माहवारी के बीच में तो ऐसा दर्द नहीं होता? कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। और जो दर्द होता है, वो कितनी शिद्दत का होता है कि आप जो है उसमें उल्टी भी होती है आपको, जब तक आप इंजेक्शन ना लगवाएँ, इतनी सीवियर होती है? पहले जो थी सिर्फ़ दवाइयों से ठीक हो जाती थी, लेकिन अब मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जो है ये सिर्फ़ नलों में ही रहता है या पूरे पूरे पेट में होता है आपको दर्द? इसके साथ आपको पेशाब की तकलीफ़ तो नहीं नीचे होती? नीचे नहीं, पेशाब की तकलीफ़ नहीं होती, सिर्फ़ नीचे वाले एरिया में। ठीक है। और पखाने का मसला तो नहीं होता? ख़ास करके उन दिनों में जब आपको दर्द हो? नहीं, ठीक है। उसके अलावा मुझे ये बताएँ कि आपको नीचे से कोई गंदे पानी की शिकायत तो नहीं है? नहीं, कोई डिस्चार्ज नहीं। नलों में कोई गोला तो महसूस नहीं होता? या भारी-भारी नहीं, महसूस तो नहीं होता? अच्छा, नहीं, और कमर उसके में अलावा होती है जो दर्द है उसमें। नीचे ठीक है। नीचे से आपको कोई जो है गोश्त का टुकड़ा तो महसूस नहीं होता या नीचे से कोई रसोली महसूस होती हो? नहीं, अच्छा, माहवारी के 2 माहवारी के आपको माहवारी जो है हर माह एक ही टाइम पे आती है? आगे-पीछे तो नहीं होती? सिर्फ़ 2-4 दिन का फ़र्क पड़ता है, वैसे ठीक रहती है। 2-4 दिन का फ़र्क मतलब जल्दी आ जाते हैं या देर से आ जाते हैं? कभी जल्दी आ जाती है, कभी देर से आ जाती है। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपको जो है कभी शौहर से मिलने में तकलीफ़ तो नहीं होती, दर्द तो नहीं होता? होती अच्छा, उसी टाइम होता है सिर्फ़ या बाद में भी रहता है दर्द? थोड़ी देर रहता है, फिर बाद में ठीक हो जाता और उसके साथ खून तो नहीं आता? है। नहीं, ठीक है, सही है। अच्छा, और उसके अलावा मुझे आप ये बताएँ कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? आपको पहले कितने बच्चे हैं? 5 साल हुए हैं जी, कोई बच्चे नहीं। अच्छा, 5 साल हो गए और कोई बच्चे नहीं। अच्छा, फिर आपकी और आपके शौहर की ये पहली शादी है? जी। तो आपने जो है बच्चे के लिए कोई इलाज लिया है इस बीच में? हाँ जी, वैसे कराती हूँ लेकिन हुआ नहीं। और रिपोर्ट्स भी करवाए हैं आपके और आपके शौहर के? पुराने कराए थे जी, अभी रीसेंट कोई नहीं हुआ। तो वो ठीक आए थे? तब डॉक्टर ने कहा था हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अच्छा। आपके ट्यूब टेस्ट भी हुआ था? नहीं, वो नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा ज़ेनब, मुझे ये बताएँ कि आप और आपके शौहर जो है वो हफ़्ते में कितनी दफ़ा ताल्लुकात कायम कर लेते हैं? 1 से 2 दफ़ा। तो इस बीच में आपके शौहर को कोई तकलीफ़ तो नहीं होती? मतलब कोई कमज़ोरी महसूस होती हो? किसी चीज़ की आदत तो नहीं है उनको, नहीं, जिससे कि सिगरेट चीज़ या अच्छा, नो, कभी कोई नलों का ऑपरेशन या हर्निया का ऑपरेशन तो नहीं हुआ उनका? नहीं, कोई दवाइयाँ तो इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, ठीक है।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको इस दर्द के अलावा कोई और तकलीफ तो नहीं है, कोई गिल्ट का मसला या कोई और चीज जो आप मुझे बताना चाहें, वजन की कमी या वजन बढ़ गया हो पहले से? नहीं। अच्छा, चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल तो नहीं होते? नहीं जी। अच्छा, ये नलों में जो आपको दर्द रहता है, इसमें आपको बुखार तो नहीं रहता, खास करके शाम के टाइम ज्यादा बुखार होता हो या नहीं। खांसी रहती हो, खानदान नो। में किसी को टीबी की शिकायत हो? नो। ठीक है। बहुत ज्यादा आप ऐसा भी तनाव का शिकार तो नहीं रहती, स्ट्रेस लेती हो? स्ट्रेस सबको ही है पाकिस्तान में, किसको नहीं। ठीक है। और उसके अलावा जो है अ, अच्छा, ठीक है, इसके अलावा आपको आप मुझे और कुछ बताना चाहें जो शायद मैं भूल गई पूछना? नहीं जी। ठीक है, सही है। मेरा इसके अलावा, डायग्नोसिस क्या है? जी सर। जी, मसला क्या है डॉक्टर साहब? जी ज़ैनब, उसी के लिए मैं बता रही हूँ आपको। देखिए ज़ैनब, आपसे जो मैंने सवालात किए, अभी मैं आपका जी नहीं, सिर्फ डायग्नोसिस। अच्छा, देखिए आपसे मैंने जो सवालात किए हैं, ठीक है? और जैसे कि मुझे अभी पता चला है कि आपको 5 साल से बच्चे के लिए भी कोशिश करी है, पहले भी आपकी रिपोर्टें हुई थी, वो ठीक आई थी। लेकिन मज़ीद आपके कुछ रिपोर्ट करवानी पड़ेंगी और अभी मैं आपका मुआयना भी करूँगी ताकि मुझे और ज़्यादा पता चले कि आपको दर्द कौन-सी जगह पे होती है, और शायद मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी करवाने पड़ें। आपके शौहर का भी पानी का टेस्ट होगा, आपकी ट्यूब टेस्ट भी करवानी पड़ेगी, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि इस दर्द की वजह से जो है ये वजह क्या है, ठीक है? और जी। उसके अलावा जो है, जो आपसे मैंने सवालात किए हैं, उनसे मुझे ये मालूम होता है कि आपको जो है नीचे बच्चेदानी में अम, सर विदाउट रिपोर्ट्स और एग्जामिनेशन, कैसे मैं वो करूँ कमेंट? एग्जामिनेशन की पॉइंट्स बोलनी पड़ेंगी ना इसको? इसमें कमांड में नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने नहीं बोली। अच्छा, व्हाट डू यू मीन में कमांड में नहीं लिखा हुआ था? कमांड में क्या चीज इसमें लिखी लिखा हुई? है कि ऑब्टेन अ डिटेल हिस्ट्री, मतलब फोकस्ड हिस्ट्री सिर्फ, ओके। और? और एक्सप्लेन द डायग्नोसिस टू द पेशेंट। ओके। और लास्ट? तीन है ना आपकी टास्क बेटा? डिस्कस द मैनेजमेंट प्लान विद द पेशेंट, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग विल बी प्रोवाइडेड ए टास्क। ओके। मुझे आप ये बताओ, हाउ डू यू मेक डायग्नोसिस? सर, डायग्नोसिस विल बी मेक्ड ऑन द हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट। हिस्ट्री आपने ले ली, जी सर। और एग्जामिनेशन। फिर आप एग्जामिनेशन, जाहिर है वहां बैठ के तो एग्जामिनेशन नहीं करोगे। नो सर, एग्जामिनर और से फिर का पूछ। तो उधर, क्योंकि एग्जामिनेशन का तो जो एक स्टेशन है वो तो अलग है। जी सर। ठीक है, और उसमें जनरली तो इट्स ओनली अबाउट वो ऑप्स का आता है, गायनी का नहीं देते अभी हम तो हम्म। एग्जाम में। तो फिर एग्जामिनेशन जब आपको है तो फिर आप क्या करोगे? एग्जामिनर से सर पे पॉइंट्स पूछेंगे। यस, आप कहोगे जी आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री यू लास्ट एग्जामिनर की जी मुझे इसकी सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस या एग्जामिनेशन फाइंडिंग चाहिए, वो आप उससे पूछोगे। उसके बाद ही आपका फिर आगे डायग्नोसिस बनेगा ना। सर, लेकिन कुछ एग्जामिनर्स नहीं देते फाइंडिंग्स। नहीं, आप क्या, अगर नहीं होगी तो फिर आप रोल प्ले से पूछ लोगे। लेट्स सपोज इन्वेस्टिगेशन तो उससे ले लोगे, लेकिन अगर जी। इस तरह का सिनारियो दिया हुआ है जिसमें ये है और इसमें आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप ये आप जरूर पूछ सकते हो उससे एग्जामिनर से, जी जी टू कंप्लीट माय डायग्नोसिस आई नीड टू हैव सर्टेन। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशन। वो पूछेगा जी कौन सी, आप कह दो कि जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन लेना चाहते हो या पेलो एग्जामिनेशन लेना चाहते हो या कुछ और जो इससे रिलेटेड होगा उससे आप लेना चाहते ठीक है। हो, तो वो सर, दे विल प्रोवाइड इट। अब ठहर जाओ सर, अब ठहर जाओ जरा, हौसला करें क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा सा, ऑलरेडी हमने लेट स्टार्ट किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे इसको कंप्लीट कर दूं। जो जी। एक चीज आप सबसे बड़ी मिस कर रहे हैं, ये तो सारा कुछ हो गया, दिस इज फाइन। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसी कोई चीज इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए और रिक्वायरमेंट है और वो नहीं हो रही, वो आप इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जामिनर से मांग लोगे। और देयर इज 99% चांस कि अगर उसकी की में लिखा हुआ है तो वो आपको उसको प्रोवाइड कर देगा।
अब कमिंग बैक टू दिस सिनारियो, जब आपको ये मिली थी इंस्ट्रक्शंस, जी आपका सर। इसमें, क्योंकि देयर हाँ तो ऑलवेज हैज टू बी सम डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब शुरू में आप बनाते हो, यस सर। तो इसमें क्या बनता था आपका? सर इसमें मेरे gynecological and non-gynecological causes. In the ओके, gynecological causes, on the topmost is my patient is primary fertile and she's in reproductive years. First, my diagnosis will be pregnancy, ectopic pregnancy, and uh, प्रेगनेंसी टॉपिक, ectopic pregnancy, PID, and endometriosis, and also adenomyosis and polyp. As patient having history of dysmenorrhea, severe dysmenorrhea, ठीक है। or अच्छा, if अब जी दिस इज फाइन। अब जो हमारी फोकस हिस्ट्री है उसमें से आपने इन्हीं चीजों पे फोकस करना, जी सर। ठीक। अब इसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड कर दूंगा जो आपकी आ जाती है, सब फर्टिलिटी। ठीक है सर। ठीक है। जी अब सर। आई विल नॉट ब्रिंग प्रेगनेंसी, तो आपका आसान है, आप उसकी एलएमपी जो आपने नहीं पूछी वो पूछ लोगे। सर मुझे आ रहा है मैंने LMP पूछी थी। नहीं पूछी थी आपने बेटा, ओके सर। मेरे यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसमें आपने नहीं पूछी। आई डोंट थिंक सो, किसी और ने सुना हो तो आई एम सॉरी, पर मैंने नहीं सुना। नो 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 सर, डोंट। जी जी नहीं सर। नहीं, वो तो कोई नहीं। तो प्रेगनेंसी के लिए अगर आपने कहा कि जी कि वो आपने करना है कि जी पेन और एक टॉपिक जो है, ये तो आपका रूल आउट हो जाता है फ्रॉम द फर्स्ट वन क्वेश्चन ऑफ एलएमपी। ठीक। उसके बाद पीछे आपकी रह जाती है जो आपने लिखा है एंडोमेट्रोसिस, पीआईडी जी। और पॉलिप। ठीक। ठीक है। सर एडिनोमायोसिस भी। एंड एडिनोमाइसिस, चलो मैं इसमें ऐड कर वो देता हूँ। रेयरली मतलब जी सर। ठीक, मैं इसको वो भी ऐड कर देता हूँ, दैट इज फाइन। अब उसको रूल आउट करने के लिए आप क्या क्या सवाल पूछोगे? लेट्स सर लेट्स टेक ये एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस एंड पीआईडी फर्स्ट। अब इवन पॉलिप भी आ जाएगा इसमें। इसमें क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या पूछोगे? sir, for endometriosis, we will ask a history of severity of the dysmenorrhea, its pattern, and associated dyspareunia, and sir, बस यही मतलब and sir, देखो, dysphagia, dysuria in the हाँ, days of periods. जी sir. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट जो एंडोमेट्रोसिस की पेन जो होती है, इट स्टार्ट विद द पीरियड्स एंड इट्स नॉर्मली Increases in the फिनिशेस विद द पीरियड्स। कि जब पीरियड स्टार्ट हुई उसको पेन स्टार्ट हो गई, और उसके बाद फिर वो जैसे ही उसके पीरियड 4-5 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब पीरियड्स खत्म हुए तो पेट्स खत्म हो गई। ठीक। पीआईडी की जो नॉर्मली कंजेशन या इसकी पेन नॉर्म जनरली आती है, इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन एक आम तौर पे कि दिस पेन स्टार्ट्स बिफोर द पीरियड्स, एंड जैसे ही पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के बाद वो खत्म हो जाती, शी फील्स रिलीव्ड। ठीक सर। प्री प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उसकी पेन सिवियरिटी मैक्सिमम होती है, और उसको ड्यूरिंग पीरियड्स के अलावा भी इन बिटवीन पेन हो सकती है। जी पीआईडी सर। के अंदर साथ उसको डिस्चार्ज होगा। Associated with discharge होगा। यस। और इसकी अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो उसमें उसका प्रॉब्ली टीएलसी सीआरपी रेज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बेटा एक्यूट है कि फोटो क्रॉनिक है। TLC लेकिन तो नहीं इसकी हिस्ट्री जो है वो है 3 साल की। people say is complete blood count. ठीक। Yes, ESR and बेटा अपना diabetes. प्लीज ये म्यूट कर लो आप, हाँ, थैंक यू। पीआईडी में आपका मैंने इस तरह कहा कि उसके सिम्टम्स, फीवर की, डिस्चार्ज की, टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया की, वो आपका आ जाएगा। और लास्ट वेट इसका एंडोमेट्रोसिस के साथ इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का हिस्ट्री और उसका वर्कअप होना जरूरी है। ये फोकस्ड इसके पॉइंट्स होंगे फॉर द हिस्ट्री जो आपने इसमें रूल आउट करने हैं।
उसके बाद फिर आपका आगे आ जाता है उसका एग्जामिनेशन, जिसमें पहले एग्जामिनेशन के अंदर साइज ऑफ द यूट्रस, जिसमें वो एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस और पॉलिप के हिसाब से उसका साइज, उसमें आपको पॉलिप तो नहीं आएगा, सॉरी, अगर छोटा है, बड़ा होता तो फिर वो डिफरेंट चीज हो सकती है। एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस, और इसमें मोबिलिटी ऑफ टेंडरनेस, वो सारी चीजें इसमें आपकी इन जो आप मांगोगे उससे अपना एग्जामिनेशन पे, वो ऑफ कोर्स बाकी बीएमआई और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर सर एक लास्ट बिट चीज। आपका आ जाए, जी सॉरी, लास्ट बिट आपका फिर इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, जिसमें आप उसकी इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली आपका अल्ट्रासाउंड या कुछ और आगे फर्दर उसकी ट्रीटमेंट चाहिए तो वो चाहिए कि नहीं। इस सारी हिस्ट्री के अंदर अ, 3-4 चीजें आपने जो मिस की, वो नंबर 1 कि इस पेशेंट से आपने ये नहीं पूछा कि जी कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, कहाँ की ग्रेजुएट है या नहीं है, वर्किंग वुमन है, हाउसवाइफ है। अगर वो वर्किंग वुमन आ जाती है, जो इस केस में शी वाज देयर, तो देन यू नीड टू आस्क कर कि जी क्या इस डिस्मेनोरिया से उसको कितनी दफ़ा छुट्टी करनी पड़ जाती, या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी उससे सफ़र करती, कि जी मैं तो उन 3-4 दिनों में हॉस्पिटल जा ही नहीं सकती, हॉस्पिटल कह रहा हूँ, सॉरी, किसी काम, जब मैं जहाँ भी काम करती हूँ ऑफिस में, मैं ऑफिस में नहीं जा सकती, आई हैव टू टेक दैट टाइम ऑफ। दूसरा, आपने पूछा कि जी आप इसकी रिलीविंग फैक्टर्स क्या थे। मैंने कहा कि जी पहले मैं दवाई खाती थी, अब मैं टीका लगवाती हूँ। अगर दवाई खाती थी तो कौन सी दवाई, थोड़ी सी आप पूछ लो, सिंपल पेन किलर है, कुछ और है, अपना कोई मॉर्फिन डेरिवेटिव्स तो नहीं है। लास्ट में अगर इंजेक्शन लगता है तो कितनी दफ़ा लगता है और कब कब लगाना पड़ता है, हर 4 घंटे बाद, हर 6 घंटे के बाद, या क्या, किस तरह रिलीफ होता है। दीज ऑल फीचर्स विल काइंड ऑफ हेल्प यू आगे हमने इसकी मैनेजमेंट प्लान के लिए क्या जाना। इनफर्टिलिटी, यस यू आस्क्ड, इसमें सिर्फ सब फर्टिलिटी में, क्योंकि वी आर फेसिंग टाइम थोड़ा है, अब दिस इज नॉट एन हार्ड फास्ट रूल, लेकिन इन दिस केस जो ये सिनारियो दिया हुआ था, उसमें सिर्फ आपने हस्बैंड किसी पूछना है कि जी उसका टेस्ट हुआ था, वो कहेगी हाँ जी हुआ था, उसका रिपोर्ट ठीक है, हाँ जी उसकी रिपोर्ट ठीक है, आपको हम बिस्तरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो दैट इज इट। यू विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दोस्त की जी वीकनेस है कि कोई दवाइयाँ खाते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई क्या करते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें इसमें से ऑटोमेटिकली रूल आउट होगी। हाँ, उसकी अगर रिपोर्ट में आता है कि जी उनकी रिपोर्ट के अंदर ओलिगोमेनोरिया था, या अपना स्पर्म काउंट कम था, या मॉर्फोलॉजी ख़राब थी, या एस्टिनो था, स्पर्मिया था, जो भी था, अगर वो होता है, फिर आप उसकी डिटेल में जा सकते हो। पर यू नीड टू रिमेंबर, ये फोकस का मतलब ही यही है कि जो आपने इसका डायग्नोसिस बनाया है, बेसिकली एंडोमेट्रोसिस, पीआईडी, बाकी प्रेगनेंसी टॉपिक हमने एलएमपी पूछ के उसकी आउट कर दी। और क्योंकि इसकी है लास्ट 3 ईयर से, दिस इज नॉट फॉर द, अभी ये एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। तो जब क्रॉनिक जी सर। प्रॉब्लम आ जाएगा तो बेसिकली इसमें आपने एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, पॉलिप की पॉसिबिलिटी है, जो आपने अल्ट्रासाउंड करके फिर आ जाएगा। ठीक सर। और फिर जो एक चीज आपने सबसे बड़ा मिस की कि जी ये अगर आपको इतनी सीवियर पेन है तो इसका क्या, आपने पहले क्या इलाज कराया है, जी सर। पहले आपके कौन से टेस्ट हुए हैं, क्या कभी आपका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ, कोई और ब्लड का टेस्ट हुआ, जिसमें अगर ये आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर उसमें CA-125 की भी रेलेवेंस आ जाती है। और अगर अल्ट्रासाउंड में सिस्ट, बेसिकली तो इसमें सिस्ट थी एक, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड तक तो पहुंचे ही नहीं अभी इस डिस्कशन के अंदर, और फिर आगे फिर उसकी मैनेजमेंट प्लान के अंदर फिर आ जाएगा कि क्या करेंगे। She is a case with a 7 centimeter endometriotic cyst and with subfertility, जिसमें हस्बैंड की जी रिपोर्ट सारी ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो मैनेजमेंट इज वी प्रॉब्ली नीड टू हैव अ सर्जरी, जिसमें हम आपकी ट्यूबल पेटेंसी भी चेक करेंगे, आपकी सिस्टेक्टमी भी करेंगे, आपका CA-125 बाकी वर्कअप करने के बाद देन विल डिसाइड कि हमने उसका क्या करना है, एंड देन उसके बाद फिर आगे फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो भी होगा वो उसकी रिपोर्ट, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द एंडोमेट्रोसिस, और उसके बाद फिर इसी में अगर आपके पास टाइम आ जाता है और ये सिस्ट आ जाती है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरेंस, ये वो आप बिफोर सर्जरी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या ये कहोगे जी बाकी चीज़ें दोबारा हो सकती है, नहीं हो सकती, किस टाइप की सिस्ट है, आई एम सॉरी, किस टाइप की सिस्ट है, ये हम आफ्टर द रिपोर्ट जब इसकी आ जाती है हिस्टोपैथोलॉजी,
तब हम उसको डिस्कस करेंगे। और आपका ये इनफर्टिलिटी के हिसाब से अगर ट्यूब्स खुली हैं तो फिर क्या मैनेजमेंट है, और अगर ट्यूब्स बंद होंगी ड्यूरिंग सर्जरी हम चेक करके फिर हम आपको बता देंगे, या हमने बाद में उसका HSG या जो भी करना है। आइडली स्पीकिंग जो इसकी मैनेजमेंट है वो इसकी लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी है विद ट्यूबल पेटेंसी के चेक है एंड स्टेजिंग ऑफ द डिजीज, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी विल मैनेज के क्या है। अगर वो पॉलिप आ जाता है तो फिर उसकी ज़ाहिर है इसमें हिस्टोस्कोपिकली उसकी पॉलीपेक्टमी हो जाएगी और ऊपर से दोबारा ट्यूबल स्टेटस भी आप चेक करोगे। अगर उसका एडिनोमायोसिस आ जाता है देन यू नीड टू डिस्कस कि हमने इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। उसमें भी आप उसकी एडिनोमायोमेक्टमी भी हो सकती है, उसमें सिर्फ उसकी बायोप्सी भी हो सकती है, और उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ पुटिंग इन मायरीना भी हो सकती है। जहां आपको इसका शक है कि जी कि ये एडिनोमायोसिस है कि फाइब्रॉइड है, उसमें फिर आप उसका MRI भी करा सकते हो ताकि उसको डिफ्रेंशिएट कर सको, और प्री सर्जरी उसकी मैनेजमेंट के हिसाब से उससे डिस्कस कर सकते हो कि हमने आगे क्या करना। एम आई क्लियर कि मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी सर। ठीक। सो सर एडिनोमायोसिस का आपने बताया, एडिनोमायोमेक्टोमी, ये यहाँ पे एग्जाम में भी ऑप्शन देंगे उनको, हालांकि उसका पुअर प्रोग्नोसिस। व्हाई नॉट? अगर इफ द पेशेंट इज सो सिवियर कि उसको इंजेक्टेबल से वो रिलीव ही नहीं हो रही पेन उसकी, और इसको इतना है कि उसको इतनी सी छुट्टी कर दे, तो मैक्सिमम यू कैन डू इज कि फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि एडिनोमायोसिस के लिए तो हम स्टेटमी तो इस एज पे नहीं कर सकते। उस यही पेशेंट होता है जिसकी मे बी 3 बच्चे होते हैं और उसकी फैमिली कंप्लीट है और वो है, फिर आई वुड हैव ट्राइड मारीना फर्स्ट। अगर मारीना भी फेल हो जाती फिर हम उसकी एडिनोमायोमेक्टोमी के बाद फर्टिलिटी प्रोस्पेक्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर उसको, बेटा कि क्या आप। एडिनोमायोमेक्टमी में हम सिर्फ एडिनोमायोसिस निकाल रहे हैं ना उसका, हम यूट्रस तो नहीं निकाल रहे या एंडोमेट्रियम तो नहीं निकाल रहे। जी तो सर। इट इज गोना बी एज द सेम एज ऑफ आफ्टर रिमूविंग मायोमेक्टोमी। अ फाइब्रॉइड डूइंग अ मायोमेक्टमी, प्रोवाइडेड कि उसकी प्रॉपर सर्जरी में उसकी अप्रोक्सीमेशन वो सारी ठीक हो, और उसमें पोस्ट फर्टिलिटी एडिशंस बनने का थोड़ा ज़्यादा चांस होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कि जिनमें इनफर्टिलिटी है उसमें एडिनोमायोटमी ना करवा। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा है कहीं तो मुझे बता दो। नहीं सर, मैंने ये एडिनोमायोसिस के टॉक में बस इतना पढ़ा था कि वो हम ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन वो जहाँ पे फोकल एडिनोमायोसिस हो और यस, पेशेंट को फर्टिलिटी डिजायर्स हो। फर्टिलिटी डिजायर और सिम्टम्स, जी सर। सिम्टम्स बहुत सिवियर। फोकल में मतलब करना इजीली होता है, जहाँ यस, पे स्प्रेडेड हो बहुत ज्यादा तो वहां पे तो फर्टिलिटी प्रोस्पेक्टिव पुअर हो जाते। इवन अगर यस, वो नेचुरली कंसीव भी कर ले, पहले तो इम्प्लांटेशन मुश्किल, नेचुरली कंसीव कर भी ले तो वो मिसकैरेज के रिस्क ज्यादा। वो आपकी बात बेटर बेटर ठीक है। उसमें फिर हमने देखो, वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट एंड एक्सप्लेन टू देम कि हमने क्या करना। ये वो मरीज हैं जिनमें हम इस जल्दी करके वी कैन पुट देम टू ट्राई टू कंसीव एज सून एज पॉसिबल, और अगर जरूरत हो तो उसमें इवन वी प्लान टू डू IVF अर्ली, वी कैन डू द IVF इवन अर्ली। मतलब सर ये इस, जो विंडो पीरियड मिलता है उसमें जितनी जल्दी वो कंसीव कर सके, दैट शुड बी वी शुड गिव देम अ मैक्सिमम चांस। जी सर, बिकॉज शी इज 35 ईयर नाउ। हाँ, शी 35 भी है, 3 साल शादी को भी हो गए हैं, और आगे इतनी सुस्वेयर पेन भी हो रही है कि वो अब टीकों पे तो आ गई। शी इज़ नॉट अ कैंडिडेट जिसमें हम उसको इंतजार करके देखते रहेंगे कि जी कि अच्छा पहले हम आपको कोई ओवुलेशन इंडक्शन करें या ये करें या वो करें। एंड ऑफ कोर्स ये जब आप सब फर्टिलिटी की उसकी हिस्ट्री लोगे तो उसका प्रीवियस ट्रीटमेंट जो जो अभी तक हो चुका है वो भी आप उससे पूछोगे जरूर। बाकी रहेगी नॉन गायनिकोलॉजिकल कॉजेज, आई डोंट थिंक सो वी हैव इनफ टाइम, उससे उसका जिक्र कर दोगे, लेकिन वी डोंट हैव इनफ टाइम कि जी हम उसको भी बैठ के इसमें इसमें लेके आए और इसको क्लोज करें। इसीलिए आप देखो जब हम रोल प्ले उठाते हैं तो उसमें इसकी जितनी हिस्ट्री थी कि जी मैंने कोई पीरियड्स में इरेगुलरिटी वो चीज़ें नहीं डालनी ताकि हम उधर ना चले जाएं, इंटरनेशनल ब्लीडिंग वो नहीं डालनी ताकि हम उधर ना कहीं चले जाएं। हम वी काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन द टाइप एंड देन ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल ताकि आप उसकी डायग्नोसिस तक के पहुंचोगे, क्योंकि हिस्ट्री लेना तो एक बात थी, डायग्नोसिस तक पहुंचना एक और थी। थर्ड पार्ट वाज मैनेजमेंट। तो तीनों के ही तकरीबन 1/3 1/3 1/3 नंबर हो। तो अगर आप पहले 2 पार्ट कर भी लोगे
लेट्स सपोज आप ये उसका कर लेते हो और आखिरी पार्ट तक मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचते उससे डिस्कशन में, तो दैट मीन्स कि आपका 10 में से तो 4 नंबर तो वैसे ही चलेगा, तो यू विल गेटिंग द नंबर फ्रॉम ओनली प्रॉब्ली फ्रॉम 6। 6 में से मैक्सिमम आप कितने ले लोगे? 3 ले लोगे, 4 ले लोगे। तो इसलिए वो 10 मिनट तक आपने उसको कंप्लीट जरूर करना चाहिए आपको सिनारियो। सर इसकी मैनेजमेंट जो है, मैं उसको उर्दू में थोड़ा काउंसिल करूं, मुझे मिस्टेक्स पता चले। Why do you want to counsel them in Urdu? Why not in English? ये यस पढ़ी सर, लिखी ग्रेजुएट है तो यू ट्राई टू, मेरा तो ख्याल है आप प्रैक्टिस करके इंग्लिश में बोलने में इट मेक्स योर लाइफ इजी। पर इफ यू कंफर्टेबल के नीचे, हमने तो हर मरीज को उर्दू में ही किया हुआ है, यू कैन। लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब शुरू में उससे बात करो तो एक जरूर पूछ लो कि जी आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। ठीक सर। अगर आप पंजाब में हो तो हो सकता है शी विल से कि जी मुझे तो पंजाबी में बात करे। आप सिंध में बैठे हो तो मे बी दिल से कि जी मुझे सिंधी में सुनाओ, और केबी में क्यों में क्या पश्तो में सुनाओ। अब सही। वहाँ बलूचिस्तान में चले जाओगे तो क्या जी मुझे आप बलोची में बताओ। पर वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर एरिया एंड देन जहाँ भी वो कंफर्टेबल है, अदर इन इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी या सारों में। वो क्या जी मैं तो सब में हूँ, तो फिर देन इट्स योर चॉइस वेयर यू वांट टू। जी हाँ, आप क्या कहते हैं? सर मैं कह रही थी कि मैं इसकी काउंसलिंग करूं, जैसे आपने 7 सेंटीमीटर का सिस्ट दिया है इसमें, जी, तो उसमें, या अगर मैं इंग्लिश में एग्जामिनर को बता रही हूँ तो वो मैं बताऊं, आप अगर मिस्टेक्स आपने निकाल एग्जामिनर को नहीं बेटा इसमें बताना, इसमें तो रोल प्ले की कहानी है ना, तो रोल प्लेयर को बताना। को, तो सर मैं बताऊं उसको, किस चीज को बताओ? मतलब जो आपने फाइंडिंग दी कि 7 सेंटीमीटर उसके कि जी सिस्ट जो है। मुझे अल्ट्रासाउंड मिला है उसमें आपकी इस तरह यू हैव इंग्लिश है तो यू हैव अ सिस्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर। इसमें ये है जो आपके सिम्टम्स हैं, दिस पॉसिबिलिटी कि ये डिजीज है जिसको हम एंडोमेट्रोसिस कहते हैं, उसके लिए यू प्रॉब्ली नीड टू हैव अ सर्जरी। इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फॉर यू बिकॉज ऑफ योर इनफर्टिलिटी एंड द severity of the disease, so sorry, severity of the symptoms, conservative management is not preferred। ठीक है सर। अगर मरीज आगे से कहे नहीं जी मैंने तो फिर भी कंजर्वेटिव कराना, तो फिर आप उसको ये जरूर एक्सप्लेन करोगे जी योर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज कैन बी डन, लेकिन इट कैन ओनली बी डन फॉर टेम्परेरी पर्पसेस। एंड व्हाइल वी आर डूइंग योर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ऑल दोज मेडिसिंस जो हम आपको देते हैं दे विल नॉट हेल्प यू, या हम जो भी प्रोसेस करते हैं दे विल नॉट हेल्प यू टू गेट प्रेग्नेंट, दे विल स्टॉप योर pregnancy also। So if you have an issue of infertility, subfertility, sorry, and endometriosis and a cyst, then my first choice for you would be a surgery। समझ आई बेटा कि नहीं है? जी जी सर। चलो ठीक। अगर वो आ जाती है तो फिर देन इसके बाद मरीज फिर भी कहता है कि नहीं जी मैंने तो फिर भी कंजर्वेटिव कराना है, फिर यस यू कैन से हाँ जी हम टेम्परेरी जब तक आप डिसीजन नहीं लेते तब तक हम ये कर सकते हैं। वी कैन पुट यू ऑन अ पिल जिसमें आपके पीरियड्स नहीं आएंगे, बंद रहेंगे, उससे आपकी पेन भी ठीक रहेगी ताकि आप फाइट कर सको, और फिर फाइनली हम उसको आगे कर लेंगे कि आगे हमने करना क्या। लेकिन वो जब भी हम ये दवाई छोड़ेंगे तो आपके सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। जी सर। ठीक। फिर सेकंड उसमें आपको जो एक्सप्लेन करना है कि जी हाँ जी वो सर्जरी जो है वो किस तरह होगी और कहाँ पे होगी। उसके लिए प्रॉब्ली यू कैन टेल टू देम कि जी कि आइडली स्पीकिंग ये इस आपके लिए लेप्रोस्कोपी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे आपके स्किल्स नहीं है तो आप उसको आगे रेफर कर सकते हो। अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकती या सपोज कहीं और आपको नहीं पता, फिर आपको आगे जी इसकी ओपन सर्जरी होगी। सर एग्जाम में बैठे हम जो है रेफरल की बात करेंगे, क्योंकि हमें तो वहाँ पे आइडियल के हिसाब से बताना है ना। हाँ तो आप कर सकते हो कि जी हमारे पास यहाँ स्किल सेट नहीं है, या मैं जहाँ डिपार्टमेंट में काम करती हूँ उसमें नहीं है, पर इसका स्पेशलाइज सेंटर जो है बेसिकली उधर हम आपको रेफर कर सकते हैं अगर आप जाके वहाँ से कराना चाहें। पर आप कहो कि जी हमने यहाँ पे करना है, हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें हम इसको ओपन सर्जरी करते हैं। ओपन सर्जरी में हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी जितनी अंडेदानी बचा सकें, या मैं उर्दू में आ गया, वो हम सेव कर ये बचा लेंगे, और फिर सिस को निकालेंगे, सिस को भिजवाएंगे टेस्ट के लिए, और टेस्ट करने के बाद फिर हम आपको उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो मुझे उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके मुताबिक फिर हम आगे आपके बच्चे का इलाज उसके हिसाब से करें।
सर नहीं, मतलब अगर मैं एग्जाम में बैठी हूँ तो एग्जाम में एग्जामिनर तो ये एक्सपेक्ट करता है ना कि मतलब आइडियल जो हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स हैं उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो एक रोल प्लेयर को मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपी की स्किल्स या लेप्रोस्कोपी नहीं अवेलेबल, तो इसके लिए मैं आपको हायर सेंटर जो है अगर आप दूसरे। जाना चाहें तो, जी। अगर आप जाना चाहें तो दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड और दिस इज द फर्स्ट चॉइस। अगर आप वहां पे जाना चाहें तो मैं आपको वहां भिजवा के रेफर करके वहां से आप कैमरे वाला टेस्ट या लेप्रोस्कोपी के लिए इसको करा लें, ठीक सर। क्योंकि दैट विल एग्जामिनर को आपको ये बताएगा कि शो करेगा कि जी आपने पेशेंट की कंसर्न और उसको बेस्ट जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से आपने उसको दिए। जी सर। ये आप यू याद करोगे, जो इसकी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरीज नॉर्मली मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, हर सर्जरी उसकी डिफिकल्ट होती जाती है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जरी इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज द फर्स्ट सर्जरी, ताकि वो जितनी मेटिकुलसली होगी उतना उसको पेशेंट को फायदा हो। ठीक सर। ठीक। सर इसी पेशेंट में सिर्फ लेप्रोस्कोपी होगी, मतलब ये कंबाइंड नहीं हिस्टेरो नहीं एंड लेप्रो नहीं होगी नहीं नहीं, इस स्टेरो भी सिनेरियो होगी में? बेटा। फॉर जब भी आप इनफर्टिलिटी के लिए किसी पेशेंट की लेप्रोस्कोपी करते हो, इट इज मैंडेटरी टू डू अ हिस्ट्रोस्कोपी विद दैट। ओके ओके सर। हाँ। सर अगर इस पेशेंट में क्योंकि ये सफर्टाइल भी है तो हम इसकी जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में सफर्टिलिटी के पेशेंट में देखते हैं जैसे हिर्स्यूटिज्म, थायराइड की एग्जामिनेशन, ये भी बताएंगे? आप ये मोटा मोटा पूछोगे, लेकिन अगर आपका फोकस ऑन एंडोमेट्रोसिस है तो फिर ठीक है, यू स्टे ऑन दैट, क्योंकि यू रिमेंबर दैट बेटा वी हैव ओनली 10 मिनट्स। जी सर। ये इसी तरह है जब आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ओपीडी में बैठे होते हो, आप 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते हिस्ट्री पे, ऐसा ही है, जी सर। उसी में कंप्लीट करना है आपने बस। सर एक और चीज, इसमें मैं जैसे हिस्ट्री में भूल गई थी कि उसने अभी तक जो रिपोर्टें करवाई वो लेकर आई है क्या, मेडिसिन ली है? अगर मैं यहाँ पे भूल जाती हूँ, जब इन्वेस्टिगेशंस की बात आती है, एग्जामिनर से मेरी डिस्कशन चल रही है, तो वहां पे मैं कह सकती हूँ कि मैं पेशेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करना चाहूंगी जो उसने ट्रीटमेंट ली है। हाँ, अगर याद आ जाए जरूर करो, क्योंकि उसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते ना। तो सर मतलब उसमें वो कवर हो जाएगा ना, मतलब एग्जामिनर प्रीवियस जो मैंने उससे हिस्ट्री में नहीं पूछा उसकी मार्क्स भी कट जाएंगे फिर भी? देखो आप अपने टाइम पे हो तो उसमें से थोड़े बहुत हो सकता है कि माइनस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मिल जाएंगे नंबर, वो दैट इज मतलब वन कंपोनेंट जिसकी वजह से ये नहीं कि वो आपको फेल कर देगी। ठीक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो बेटा। चलो बेटा, थैंक यू, गुड लक एंड इमरान है डॉक्टर शनाज की क्लास जी सर, है सर। आ गई है मैडम? सर अभी आइडिया नहीं, वैसे लॉगिन हो गया उनका। चलो चलो फिर ठीक, चलो बेटा फिर ओके, खुदा हाफिज। सर एक क्वेश्चन है, ये किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि एएमएच मांगेंगे ना इस पेशेंट से प्री ऑफ? 110% मांगेंगे बेटा, और ठीक है सर। फर्टिलिटी का जो उसका जो वर्कअप है उसके अंदर जरूर आप ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मांगो। जज़ाकल्लाह खैर। ओके।